Good morning, my students. So, today I start with a new topic, pharmaceutical analysis. यूनिट फर्स्ट है आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में डेफिनेशंस एंड इट्स स्कोप. तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इट्स ए ब्रांच ऑफ प्योर केमिस्ट्री. पहली चीज तो क्या होता है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज ए ब्रांच ऑफ प्योर केमिस्ट्री which involves IPQS. I stands for identifications, P purifications, Q quantifications and S stands for suppressions. Means इसमें क्या क्या होता है, I, P, Q and S. IPQS means pharmaceutical analysis is a branch of pure chemistry which involves identifications, purifications, quantifications and suppressions of different kinds of sample. अलग अलग samples का identifications करना, purifications करना, उसका quantifications करना और उसको separate out करना, separation करना, किसी भी samples को pharmaceutical analysis कहलाता है. फर्दर जब हम सैंपल्स की बात करते हैं, when we talk about samples, what may be the samples? क्या है samples? तो samples में भी synthetic pharmaceutical ingredients, जिसे आप लोग API नाम से भी जानते होंगे, active pharmaceutical ingredients. तो पहला samples का क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है, सैंपल में भी API, active pharmaceutical ingredients, they may be synthetic pharmaceutical ingredients. दूसरे जो डिफरेंट डोसेज फॉर्मुलेशंस होते हैं, डोसेज फॉर्म्स होते हैं, चाहे सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड्स, तो डोसेज फॉर्म्स एंड फॉर्मुलेशंस. एंड थर्ड काइंड ऑफ सैंपल्स में बी नेचुरल प्रोडक्ट्स. नेचुरल प्रोडक्ट्स कैन अराइज फ्रॉम बायोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स फ्रॉम एनिमल्स, और इट में बी phytochemicals which obtain from plants. Phytochemical which obtains from plants. तो pharmaceutical analysis से हमने क्या समझा कि pharmaceutical analysis, what is pharmaceutical analysis? It's a branch of pure chemistry which involves IPQS. Branch of pure chemistry which involves IPQS, identifications, purifications, quantifications and suppression of different kinds of samples. अलग अलग samples का पहचान करना, उनका शुद्धिकरण करना, उनका अलग अलग करना और उनको क्वांटिफाई करना, ये सारी चीजें किसमें आती है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस. And when we talk about samples, तो जब सैंपल्स की बात करते हैं तो सैंपल्स में भी either dosage formulations, डोसेज फॉर्म, किसी भी डोसेज फॉर्म हो सकते हैं, कोई डोसेज फॉर्मुलेशंस हो सकता है, either it may obtain from phytochemicals from plants, or it may be the samples obtained from biomolecules, animals protein से भी obtain हो सकते हैं. सैंपल में भी API, active pharmaceutical ingredients, which may be synthetic pharmaceutical ingredients. For the sample analysis के लिए actually 3 methods होती हैं through which we can analyze our samples. Various samples analysis can be performed by using 3 methods. पहला methods क्या होता है, manual methods of analysis. जो पहली मेथड होती है वो होती है manual methods of analysis. दूसरी मेथड होती है वो केमिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस, और तीसरी मेथड्स होती है इंस्ट्रूमेंटल मेथड, MCI, मेडिकल कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट. MCI stands for manual methods of analysis, C stands for chemical methods of analysis and I stands for instrumental. means पहले मैनुअली, पहले आदमी खुद करेगा मैनुअल मेथड, फिर दूसरा रासायनिक विधि से और तीसरी
instrumental methods. So further, when we consider about how manual method of analysis can be performed, तो जैसे किसी भी चीज को चेक करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो तीन चीजें होती हैं कॉमन: कलर, ऑर्डर एंड टेस्ट। कलर, ऑर्डर एंड टेस्ट। कलर, ऑर्डर एंड टेस्ट। और फिर क्या होता है ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज? टेक्सचर्स एंड इट्स अपीयरेंस। These are all organoleptic characters such as कौन सी? color, order, taste, COT, 10 cot वाला COT, order, taste, texture and appearance can be analyzed by our sense organs, sensory organs के through हम analyze कर सकते हैं। These are all the organoleptic properties comes under the category of manual methods of analysis. When further we move towards chemical methods of analysis, तो chemical methods of analysis करने के लिए हम क्या करते हैं? Different kinds of titrations perform करते हैं। तो different types of titrations comes under the category of chemical methods of analysis. क्यों titrations chemical methods of analysis की category में आता है? Because it involves different chemical reactions between reagents. Because it involves क्या involve करता है? Different chemical reactions take place between reagents. Third जो methods of analysis होता है, it involves instrumental methods of analysis. अब इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस में दो चीजें आती हैं। एक आती है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक और एक आती है आपकी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स और दूसरी आती है आपकी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स। व्हेन वी कंसीडर या व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, the spectroscopic techniques which involves इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की स्टडी हम करते हैं। तो इन स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स वेरियस टेक्निक्स टेक प्लेस, जैसे कि आपकी यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसकी रेंज रहती है आपकी 200 टू 800 नैनोमीटर, जिसमें यूवी की जो रेंज रहती है यूवी के लिए इट्स 200 टू 400 नैनोमीटर एंड फॉर विजिबल के लिए रहती है 400 टू 800 नैनोमीटर्स। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस में आता है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। सेकंड मेथड्स इट इन्वॉल्व्स मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। थर्ड इन्वॉल्व्स एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस मींस कपलिंग डीकपलिंग, इसमें पढ़ेंगे स्पिन कपलिंग, स्पिन। और आईआर बोले तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। वहीं पे जब हम क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स की बात करते हैं तो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स इन्वॉल्व्स पेपर क्रोमेटोग्राफी, टीएलसी आपका थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी आपका हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, एचपीटीएलसी आपका हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। मींस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स में जो टेक्निक आती है दे आर पेपर क्रोमेटोग्राफी, टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, एचपीटीएलसी में आता है हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस इन्वॉल्व्स टू मेथड्स, पहला स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स और जो दूसरी मेथड होती है वो इट इन्वॉल्व्स क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, राइट, यूवी विजुअल। दूसरा एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। थर्ड है आपका मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड लास्ट
IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। और वहीं पे जब हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स की बात करते हैं तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स में आती हैं आपकी पेपर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, HPLC आपका हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और फर्दर HPTLC हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। और इसी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स में फर्दर कंबाइंड HPLC के साथ में भी होता है, तो HPLC GC, HPLC MS, तो इस तरह से बहुत सारी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स भी इन्वॉल्व होती हैं। फर्दर भी हम बात करते हैं when we move towards types of pharmaceutical analysis, तो pharmaceutical analysis basically involves two types, दो तरह की से होता है pharmaceutical analysis परफॉर्म करते हैं। एक तो होता है क्वालिटेटिव टेस्ट और एक होता है क्वांटिटेटिव टेस्ट। मींस क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव, the name itself suggests analysis for what? किसको एनालिसिस कर रहे हैं? To determine the quality of the product, प्रोडक्ट की क्वालिटी, सैंपल की क्वालिटी कैसा है, स्टैंडर्ड है को रेफरेंस को मेंटेन कर रहा है कि नहीं, क्वालिटी। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस itself indicates, the word itself suggests क्वांटिटी, क्या बता रहा है? क्वांटिटी। तो क्वांटिटी मींस अमाउंट, एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट, एस्टिमेशन ऑफ वेट और कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन ए सैंपल। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस मींस टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ द सैंपल, स्पेसिफिक अमाउंट, specific weight or specific concentrations of constituents present in a sample। ये किसमें करते हैं? in quantitative analysis। वही जब हम बात करते हैं qualitative analysis की, तो qualitative analysis suggests कि सबसे पहले we have to estimate the exact quality of that particular sample। फिर उसी में हम क्या करते हैं कि क्वालिटी के बाद सैंपल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, मींस प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए सैंपल्स। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए सैंपल्स हम किस पे फोकस करते हैं? टू एस्टिमेट द स्ट्रक्चरल इलूसिडेशन की तरफ जाते हैं, स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। और जब स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई हो जाता है तो फर्दर वी मूव्स टुवर्ड्स डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट का निर्धारण करने की कोशिश करते हैं। फर्दर जब हम मूव टुवर्ड्स स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, तो जब स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो इसमें 5 तरह का स्कोप होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, फूड इंडस्ट्रीज में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में, आपका एनवायरमेंटल स्टडी की उसमें एनालिसिस में, and in disease diagnosis। Further, when we move towards what is the scope of pharmaceutical analysis in the field of pharmaceutical industry, तो pharmaceutical industries में there are different sectors in pharmaceutical industries as research R&D, इसमें आता है स्पेसिफिकली R&D और आता है आपका QC। मींस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में डिफरेंट सेक्टर्स आते हैं। देयर आर डिफरेंट सेक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एज R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल, इन विच जिसमें कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज यूटिलाइज्ड रेगुलरली। मीन्स R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, QC, क्वालिटी कंट्रोल, ये सारे में हम देखते हैं कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज यूटिलाइज्ड रेगुलरली।
वहीं पे जब हम डिफरेंट रूटीन्स ऑफ एनालिसिस की बात करते हैं, सैंपल्स की डिफरेंट डिफरेंट रूटीन सैंपल एनालिसिस की बात करते हैं, तो इट कैन बी पॉसिबल बाय डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। अलग अलग टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस के थ्रू हम फार्मास्यूटिकल सैंपल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्दर रॉ सैंपल्स, रॉ मटेरियल्स, उन्हीं रॉ मटेरियल से बाद में जो फाइनल प्रोडक्ट्स बनेगा या फिनिश प्रोडक्ट्स बनेगा, उनकी आप क्वालिटी उनकी प्यूरिटी और उनकी सेफ्टी, रॉ सैंपल्स एज वेल एज फिनिश्ड प्रोडक्ट और फाइनल प्रोडक्ट्स, उनकी क्वालिटी, प्यूरिटी एंड सेफ्टी कैन बी एनालाइज्ड बाय different various methods which are involved in pharmaceutical analysis। वहीं पे जब हम फूड इंडस्ट्री की बात करते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के स्कोप में, तो एज वी ऑल नो, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एज वी ऑल नो दैट पैक्ड फूड जो पैकिंग में आता है, पैक्ड फूड कंज्यूम्ड by consumers should have all parameters like quality, purity and safety। और यही पैरामीटर्स क्वालिटी, प्यूरिटी एंड सेफ्टी enhances the acceptability of food by the consumer। Enhances the quality, purity, safety। These are all the parameters which enhances the acceptability by consumers। और क्या होता है कि different types of preservatives, coloring agents, flavoring agents are used in packed food। चाहे वो कलरिंग एजेंट की बात करें, चाहे फ्लेवरिंग एजेंट की बात करें, चाहे प्रिजर्वेटिव एजेंट्स की बात करें, एनी हाउ दे कम्स फ्रॉम द सिंथेटिक केमिकल इंग्रेडिएंट्स। तो ये सारे केमिकल इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली इट शुड बी एनालाइज्ड बाय यूजिंग डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक्स। थर्ड जो यूज है इन केस ऑफ कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज, तो प्रिपरेशंस ऑफ कॉस्मेटिक्स की प्रिपरेशंस जैसे विच इन्वॉल्व सच एज लिपस्टिक्स, कॉस्मेटिक क्रीम्स, नेल पेंट्स, शैम्पूस, कंडीशनर्स आदि आदि एक्सेट्रा, जिसमें कि आप देखते हो चाहे वो नेल पेंट्स हो, चाहे वो कॉस्मेटिक क्रीम्स हो, चाहे लिपस्टिक्स हो, तो इट इन्वॉल्व्स कलर एंड ऑर्डर। और इसी कलर एंड ऑर्डर्स में ही कलरिंग एजेंट्स एंड फ्रेग्रेंसेस भी इन्वॉल्व होते हैं। तो देयर क्वालिटी, प्यूरिटी एंड सेफ्टी शुड बी क्रॉस चेक by the help of different techniques of analysis। वहीं जब हम बात करते हैं in case of environmental study, तो environment में जब हम प्रोसेसिंग करने जा रहे हैं, anyhow here we are dealing with the pharmaceuticals samples, so we have to consider the temperature, humidity, or it should be analyzed by एनालिटिकल मेथड्स। और जैसे कि वाटर है, जैसे कि कोई सैंपल्स है, तो उसको पीएच डिटरमाइन करना है, वाटर का पीएच डिटरमाइन करना है, तो इट शुड बी एनालाइज्ड बाय द हेल्प ऑफ एनालिटिकल टेक्निक्स। वहीं पे आता है डिसीज डायग्नोसिस, तो जैसे एचआईवी डिसीज है, उसको डिटरमाइन करने के लिए एचआईवी डिसीज आपको मालूम होगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होते हैं एचआईवी एड्स,
एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होते हैं। तो एचआईवी वायरस को डिटेक्ट करने के लिए आपको एलिजा मेथड्स अपनाते हैं। विद द हेल्प ऑफ एलिजा मेथड्स इट कैन बी डायग्नोस्ड बाय यूजिंग द फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल टेक्निक्स। सो जब हम बात करते हैं स्कोप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की, तो इट इन्वॉल्व्स 5 स्कोप्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, दूसरा स्कोप है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, तीसरा आपका फूड इंडस्ट्री, चौथा आपका एनवायरमेंटल स्टडी, एनवायरमेंट कैसा होगा, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन डायग्नोसिस ऑफ अ डिसीज। सो everybody knows the definitions of pharmaceutical analysis. It involves IPQS, identifications, purifications, quantifications, and separation of different samples. Samples की बात करते हैं तो samples में भी dosage form formulations, it may be natural products, and it may be synthetic ingredients such as API, active pharmaceutical ingredients. सैंपल्स एनालिसिस मेथड्स की बात करते हैं तो इट इन्वॉल्व्स 3 मेथड्स। पहला मानव खुद करेगा, मैनुअल मेथड्स, फिर इसके बाद केमिकल मेथड्स, केमिकल की मदद से, एंड थर्ड मेथड इज इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स। इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स इन्वॉल्व्स 2 methods, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स एंड क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स में आता है आपका यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड, मास एंड एनएमआर। वही क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स की बात करेंगे तो पेपर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, HPLC हाई परफॉर्मेंस क्रोमेटोग्राफी एंड HPTLC हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। फर्दर जब हम और बात करते हैं तो कंबाइंड क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स भी आती है, HPLC GC, HPLC मास, HPLC MS के साथ। टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की बात करते हैं तो इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव नाम से सजेस्ट करता है टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। इस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके स्ट्रक्चर को इलुसिडेट करेंगे, फिर उसमें मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करेंगे। वही क्वांटिटेटिव एनालिसिस, as the name itself suggests, quantity, estimation of a quantity, estimation of amount, weight, concentration of constituents present in a sample. Scope of pharmaceutical analysis, definitely pharmaceutical industry, cosmetic industry, food industry में, और आपका environmental study में, and in diagnosis of a disease. So I hope you all have understood, and with this I like to stop today's class. Wish you all the best.